नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के साहिल पर 25 फुट लंबी ब्लू व्हेल मछली पाई गई। करीमनगर के लोअर माने डैम के भी 6 दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर पानी भर गया, ट्रैफिक मुअत्तल। तैयारे में परवाज के दौरान लेडी डॉक्टर को जिनसी हरासानी, प्रोफेसर गिरफ्तार। कई दिनों तक जारी रहने वाली बारिश के बाद हैदराबादियों को जुमे के रोज सूरज का नज़ारा देखने को मिला है। साफ आसमान के नज़ारे से इन शहरियों ने राहत महसूस की जो तकरीबन एक हफ्ते से घरों में महसूर थे। कई रोज से मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पानी जमा हो गया, ट्रैफिक में खलल पड़ा और रोजमर्रा के काम ठप हो गए। ताहम जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकला, सड़कें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गई। स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने स्टॉल लगाए, अपने सामान और खिदमात इन हुजूम को पेश कर रहे हैं जो अपने घरों के अंदर कई दिनों तक बंद रहने के बाद बाहर निकले थे। अगरचे दिन ज़्यादातर अबर आलूदा रहा, सूरज की कभी कभार नमूदार होने से गर्मी आ गई। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में आने वाले दिनों में ज़्यादातर खुश्क हालात रहने की तौक़्क़ो है। सदस्वी पेट टाउन के सिद्धापुर की रोड कई सालों से तामीर न होने से आए दिन हादसात हो रहे हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट दवाखाने जाने के लिए आवाम को यही रोड से होकर गुजरना पड़ता है। इस रोड की तामीर के लिए ना ही मुकामी कायदीन को परवाह है, ना ही मुतल्लिका अहदेदारों को। आइए देखते हैं हमारे TNT न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इब्राहिम की ये रिपोर्ट। ఎట్లా పడ్డావు? ఎక్కడ ఆటోలకేనా పడ్డరా? చేస్తామని అట్లే పెడుతున్నారు. ఇది ఆటోలో ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, మనుషులు నడవని కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. చర్య తీసుకొని మంచి చేస్తే సార్. హరీశ్రావు గారు ఏమైనా ఇది చేసుకొని మరి 4 కోట్లు ఫంక్షన్ చేసారు. 4 కోట్లు ఎక్కడ పోయినట్టు? మరి 4 కోట్లకి ఇంతవరకు నమస్కారాలు. మన TRS ప్రభుత్వానికి నమస్కారాలు. మన హరీశ్రావు గారికి నమస్కారాలు. ఇక్కడ ఇస్తామని 4 కోట్లు ఇంతకుముందు 47 లక్షల రూపాయలు ఫంక్షన్ చేసారు. అది కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 4 కోట్లు ఫంక్షన్ చేసారు. రోడ్ ఎక్కడ వేసినా గొంగళ అక్కడ ఉంది. మరి అందరు చెప్తారు ఇక్కడ రోడ్ వద్ద చెప్తారు. కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. కాంట్రాక్ట్ ఎక్కడ అవుతుందో ఎవరితో అవుతుందో తెలియదు. ఎవరు ప్రజలు మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. మేము ఆటో డ్రైవర్లో మాట్లాడే అధికారం మాకు అంత లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే దయచేసి మాకు ఈ రోడ్డు ఒకటి శాంక్షన్ చేయగలని ప్రభుత్వానికి, హరీశ్రావు గారికి, మన కేసీఆర్ గారికి విన్నవించి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకు మాకు ఆ రోడ్ వేయాలని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పదలుచుకున్నాను. అంతే చెప్తున్నానండి. 3 సంవత్సరాల క్రితము ఈ రోడ్డు మీద నిలబడి కమిషనర్తో మాట్లాడితే వచ్చినాక ఏమన్నాడంటే ఇట్లా బాగోలేకపోతే ఇంకో తోవలేంకోవాలని చెప్పిండు. ఈ రోడ్డు కాకపోతే ఇంకో రోడ్డు పోవాలని చెప్పిండు. ఏమన్నా మాట్లాడితే నీది ఏ పార్టీ అని కూడా ప్రస్తావించిండు. మరి నాయకుడా కమిషనరా అని తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ జాగ మీదకి వచ్చి చూస్తానికి తెలుస్తుందని విన్నవించుకుంటాం. మించి ఒక 25-30 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు సదాశివపేట నుండి సిద్ధాపూర్ కాలనీ వరకు ఈ రోడ్ వేయడానికి ప్రభుత్వం ఎంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది అని అంటే అంత నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిసారి కూడా మేము ఈ నీళ్ళతోటి ఇదే ఇబ్బందులు. ఈ రోడ్డు నుంచి ఒక 10-20 గ్రామాలు కూడా సదాశివపేటకు ఇక్కడ వస్తారు. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. ప్రతి నిత్యం సిద్ధాపూర్ కాలనీ నుంచి పొద్దునే లేస్తేనే అడ్డ మీద కూలీలకు పోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ రోడ్డు నుంచి మేము ఎట్లా వెళ్ళాలి? ప్రతిసారి కూడా ఇదే కొట్లాడుతున్నాం. ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. 2 సంవత్సరాలప్పుడు దీనికి 45 లక్షలు అని చెప్పేసి మున్సిపల్ ఫండ్ నుంచి పెట్టినామన్నారు. ఆ మున్సిపల్ ఫండ్ కూడా ఈ మట్టిలనే కలిసిపోయినట్టుంది. మళ్ళీ 6 కోట్లన్నారా అని చెప్పేసి మళ్ళీ శాంక్షన్ చేసిండ్రు. మినిస్టర్ గారు వచ్చి మళ్ళీ కూడా రిబ్బన్ కట్ చేసిపోయింది. 2 సంవత్సరాలప్పుడు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఊరుకున్నారు. 1 ఇయర్ నుంచి వర్క్ నడుస్తుంది. ఈ 1 ఇయర్ నుంచి కూడా ఈ 2 కిలోమీటర్ల రోడ్డు చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది? మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు? అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు? ఏ నాయకులకు ఫోన్ చేసినా ఎవరు కూడా రెస్పాన్స్ లేదు. ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యము?
2 కిలోమీటర్ల రోడ్ వేయడానికి ఇంత ఇబ్బంది. ముందుకు వెళ్తే అసలు 2 బస్సులు వచ్చినాయంటే 2 ఆటోలు వచ్చినాయంటే రోడ్ దిగడానికి కూడా రాదు. అంత పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉంది. నైట్లో కూడా రావాలంటే ఈ నీళ్ళకి వెళ్ళి రావాలంటే పబ్లిక్ ఎలా వస్తారు? వీధి లైట్లు కూడా లేవు. మొన్నటి వరకు వీధి లైట్లు వెలిగినాయి, అవి కూడా ఇప్పుడు లేదు. ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది మరి ఈ ప్రభుత్వము? ఈ 6 కోట్లన్నర మరి ఆ కాంట్రాక్ట్ जुमे के रोज हल्का असम्बली नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज के हमरा बालकापुरा नाले और आसपास के इलाकों के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी डिवीज़न अहमदनगर के इलाके उस्मान पीटी, मदीना मस्जिद, ताहिर गली, सैयद नगर का दौरा किया गया। इस मौके पर वेंकटेश साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, अहमदनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन के अलावा अहमदनगर डिवीज़न के AIMIM इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन, सरगर्म कारकुनान और दीगर मौजूद थे। मगर ये काम जो इसी तेज़ी से होना है उस तेज़ी से नहीं हो रहा था, जिसके लिए तफसीली दौरा किया गया। उसके साथ साथ ताहिर गली का भी एक दौरा किया गया, जहाँ पे वहाँ पे भी एक छोटा सा नाला था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर की ताख़ीर की तरफ से नाले में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। कमिश्नर GHMC साहब ने पूरा तफसीली दौरा किया और पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम फटाफट वार फुटिंग के ऊपर जल्द से जल्द करवा जाए। कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ है, 6-8 प्रॉपर्टीज़, उस प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर करके काम को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए जो फसलानसर सैयद नगर से जो होते हुए आ रहा है नाला, उस नाले को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में साबिक़ा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब और यहाँ के अहमदनगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, कोऑप्शन मेंबर, तमाम GHMC के ऑफिसर्स आज के दौरे में मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये नाले का काम तकमील किया जाएगा और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट काम है, जो काम में कॉन्ट्रैक्टर सुस्ती कर रहे हैं, उस काम को वार फुटिंग पे कराने के लिए हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करें। और एक अहम जो मसला दिखा आज के दौरे के अंदर सैनिटेशन का, सैनिटेशन के लिए मैं ख़ास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया हूं कि भाई आप स्वच्छ ऑटो बढ़ाइए ताकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो होना है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके लिए सैनिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। लोग निकाल के बाहर ओपन पॉइंट्स के अंदर अपना गार्बेज डाल रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने कहा इसके ऊपर रिव्यू करके हम बहुत जल्दी इसके एक कोई ना कोई चीज़ हल निकालेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस जुमे के रोज हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के रुकन असम्बली व मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दबीरपुरा बीबी का अलावा पहुंचकर धट्टी पेश की। इस मौके पर शिया बरादरी के जिम्मेदारान ने इनका इस्तकबाल किया। मोबाइल थोड़ा आराम, थोड़ा अरे ऐसा हटो जी, ऐसे सामने तो हटो, दूसरा कैसा लेना। हेलो फोटोग्राफर, जरा हटो बेटे, पीछे हटो बाबा। हेलो मोबाइल डाउन, लो टोपी, जरा हटिए, पीछे कैमरे चल रहे हैं। हेलो 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 फोटोग्राफर, अरे हटो बाबा, बाजू हटो, लेने दो। अरे हटो। लो मोबाइल, अरे मोबाइल हटाओ जी, पीछे। हेलो आंध्र प्रदेश के साहिल पर 25 फुट लंबी ब्लू व्हेल मछली पाई गई।
एक बहुत बड़ी मछली जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खलीज बंगाल के साहिल पर पाई गई है। मुकामी माहिगीरों का कहना है कि ये इन समंदरों में एक नायाब मछली है। इन्हें शुबा है कि इसकी मौत गहरे पानी में दाखिल होने के बाद हुई है। ये मछली तकरीबन 25 फुट लंबी है और इसका वजन 5 टन है। ब्लू व्हेल को ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है। आसपास के गाँव के लोगों की बड़ी तादाद मछली को देखने के लिए जमा हो गई है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर पानी भर गया है। ट्रैफिक मुअत्तल। हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से जुमे को हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त ठप हो गई। मनीरू नदी से आने वाले सैलाबी पानी से एनटीआर जिले में नदीगामा के करीब अट्टावरम के मुकाम पर कौमी शराब 65 तालाब की शक्ल में बदल गई। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों को तेलंगाना के कोदार में मोड़ दिया गया। अहदेदार ने बताया कि ट्रैफिक को हुजूर नगर और मरियाल गोड़े के रास्ते रवाना किया जा रहा है। करीमनगर के लोअर मान्य डैम के भी 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। तेलंगाना करीमनगर शहर में वाक़ लोअर मानेर डैम के 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिलसिला जिले में वाक़ मिड मानेर प्रोजेक्ट से आने वाले शदीद सैलाबी पानी की वजह से करीमनगर के लोअर मानेर डैम में काफ़ी पानी जमा हो गया है, जिसके पेश नज़र लोअर मानेर डैम के 6 दरवाजे वजीर गंगूला कमलाकर ने खोलकर पानी छोड़ा है। तेलंगाना मुखन्ना का इजलास इस तारीख से है। रियासती हुकूमत ने जुमे को ऐलान किया है कि तेलंगाना कानून साज असम्बली और कानून साज कौंसिल का ताज़ा इजलास 3 अगस्त से शुरू होगा। रियासत में साल के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल ये कानून साजी का आखिरी इजलास होने का इम्कान है। हुकूमत इस इजलास के दौरान कुछ मौजूदा कानून साजी में तरमीम लाने का इरादा रखती है। दरअसल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी 31 जुलाई को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना की मीटिंग मुनक़िद करने का फैसला किया है। तैयारे में परवाज के दौरान लेडी डॉक्टर को हरासानी, प्रोफेसर गिरफ्तार। एक 47 साल प्रोफेसर को पुलिस ने दिल्ली मुंबई फ्लाइट में खातून डॉक्टर को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ये वाक़ा 4 जुम्मे की सुबह दिल्ली से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में पेश आया। तैयारे में प्रोफेसर और डॉक्टर एक दूसरे के साथ वाली सीट पर बैठे थे। परवाज के मुंबई उतरने से कुछ देर कबल मुलजिम ने खातून को जिनसी तौर पर हरासा किया। डॉक्टर ने फ्लाइट के अमले को इत्तला दी और इन्होंने मुदाखलत की। बादजान जब तैयारा उतरा तो डॉक्टर ने इस वाक़े के बारे में सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके प्रोफेसर को गिरफ्तार करा लिया। इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बादजान मुलजिम को अदालत में पेश करके अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस ने इंकशाफ किया कि मुलजिम की अब जमानत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुमे के रोज GHMC दफ्तर का मुहासरा किया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश के दौरान तेलंगाना हुकूमत हंगामी हालात से निपटने में नाकामी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से GHMC दफ्तर पर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राशिद खान ने बताया है कि महबूब मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी के बावजूद GHMC ने कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए। शहरियों में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। रोज़मर्रा मेहनत करने वाले और छोटे कारोबार वाले बेरोजगार हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस की जानिब से मुतासिरीन को फ़ीकस 10,000 रुपये देने का मुतालबा किया गया है। राहुल गांधी कुमार यादव नायकत्व। राहुल गांधी नायकत्व। राहुल गांधी नायकत्व। रेवंत रेड्डी गारी नायकत्व। रेवंत रेड्डी गारी नायकत्व। सोनिया गांधी नायकत्व। खरगे गारी नायकत्व। खरगे गारी नायकत्व। खरगे गारी नायकत्व।
केसीआर डाउन डाउन केसीआर डाउन डाउन केसीआर डाउन डाउन केसीआर डाउन डाउन केसीआर डाउन डाउन। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नशे में धुत एक कार चलाते हुए दूसरी एक ठहरी हुई कार से टकरा गया। ताहम इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े में दोनों कारों को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से नशे में कार चलाने वालों के खिलाफ मुहिम जारी है। बावजूद इसके इस तरह नशे में ड्राइविंग करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग दूसरों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवानों को सेल्फी लेने से गुरेज करने अंजनी कुमार का मशवरा। अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम को प्रोजेक्ट्स, नदियों, तालाबों और आबशारों के पास जाने और पानी के मुकामात पर सेल्फी उतारने से गुरेज करने की हिदायत दी है। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।